Hello friends, myself Jeevan Rathod. Today we are going to discussing the topics. Today we are going to discussing the topics for the class ninth. And in this lecture I will cover the chapter number first. In some test books this is known for the chapter number 2. So as usual you have to use it, and I will cover all the topics one by one. That's why if you are not subscribed my channel is Maths by Jeevan Rathod. You can subscribe it if you like the videos. And today we are going to discussing the very important topic, chapter number first, that is the number system. In this topic we are going to discuss the different types of numbers and what are the use of how to represent them on a real number line. Real number lines means those numbers which can be represented on a number line known as real numbers. Let's start the topics. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दो नंबर विच कैन बी काउंटेड. ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आर नोन एज काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वन एज you know. So natural number are denoted by capital letter N. They are written as natural number, 1, 2, counting 3, 4, 5 and so on, dot dot dot. And we use the bracket, curly bracket both sides set. That's why it formed a set. Set of all natural numbers start from 1. 1 is the smallest natural number. Just note down, this is the smallest natural number. Next set. Next discuss with the whole numbers. What are the whole numbers? In the natural number, when including 0, in the natural numbers, set of natural number, when you include the 0, this will form another set of numbers known as whole numbers. Whole numbers are denoted by capital letter W. They are written start from 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and curly bracket both sides. You must remember that it includes 0, which is the smallest whole number. 0 is smallest whole numbers. Next we discuss with the integers. What are the integers? When this set of the whole numbers includes all negative natural numbers known as integers. Integers are generally represented by capital I or Z. Set of numbers जैसे natural number whole numbers is this one, 1, 2, 3, 4. These are whole numbers, these are whole numbers. And all negative numbers, these numbers with minus sign, -1, -2, -3 and so on. ठीक है, इस साइड this with curly bracket. This set of numbers is known as integers. Integers are, you must know the symbols is very important. Natural number के लिए capital N is used. Whole numbers, natural number start from 1, 1, 2, 3 and so. Smallest natural number is 1. Whole number start from 0. Smallest whole number is 0. Represented by capital W. Integers are represented by capital I or sometimes Z. You must be remember the symbols that are integers. ठीक है. Next we will discuss about the fractions. As usual we know the fractions. What is the fractions? The fraction are equal parts of a whole. एक समथिंग एक पार्ट है उसका इक्वल पार्ट्स करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेड है, इसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. 1, 2, 3, 4. इसमें से आपको पार्ट मिला 1, तो इसको आप फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4. दिस इन न्यूमरेटर, you know very well, I hope, and you know very well the upper part of this fractions is known as numerator. This is numerator, and lower part of this one is known as denominator. ठीक है. यहाँ पे अपर पार्ट क्या है? 1. न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है? न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. और डिनोमिनेटर की वैल्यू आपसे पूछेगा कोई कि डिनोमिनेटर की वैल्यू बताओ इसमें फ्रैक्शन में क्या है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? आप कहोगे 4. ठीक है. कंप्लीट पार्ट्स का कितना सेलेक्टेड पार्ट है? 1. ये न्यूमरेटर, ये कलर्ड पार्ट है. ठीक है. ऊपर वाले पार्ट को आप नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं. फ्रैक्शंस में अपर पार्ट को क्या बोले? न्यूमरेटर होगा. वो क्या होगा? शेडेड पार्ट होगा. क्या होगा? शेडेड पार्ट. ठीक है. फ्रैक्शन में ऊपर वाले पार्ट को शेडेड बोलते हैं, नीचे होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? टोटल पार्ट्स. ठीक है. अपर शेडेड, नीचे टोटल. ये 1/4 में
ये शेडेड पार्ट है, तो देखो टोटल पार्ट्स कितने काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में 4 टोटल पार्ट्स है। ये किसको डिनोट करता है, टोटल पार्ट्स। किसको डिनोट करता है, 4 टोटल पार्ट्स को। अपर पार्ट क्या होता है, शेडेड। कलर कितने में, दिस वन, दिस इज कलर्ड पार्ट, ठीक है 1। तो यहाँ पे कलर्ड पार्ट 1 है, तो इसी को बोलते हैं शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर्स, क्योंकि इन दो नंबर्स के बीच में भी आप बहुत से नंबर जानते हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में हाफ होता है, इन दोनों के बीच में हाफ वैल्यू। तो इस तरह के नंबर्स को कैसे डिनोट किया जाता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ते हैं, रेशनल नंबर। इसके डिफरेंट टाइप्स डेफिनेशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 बाई 1। स्टार्ट। डेफिनेशंस देख लीजिए आप, अलग अलग इसकी डेफिनेशंस है। इसकी डेफिनेशंस में आप क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशंस अलग अलग है। जैसे रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स टू रेशियो। दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो भी आपका क्या मिलेगा, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, ठीक है। या फिर आपके अनदर डेफिनेशंस एक और है, नंबर्स मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 पार्ट नहीं होना चाहिए। फॉर्म, इस फॉर्म में वेयर पी और क्यू क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। उस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं आप, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ताकि और डाउट क्लियर हो जाए। आपसे कोई पूछेगा 2/3 क्या रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए -2/3 2/7 क्या है, रेशनल नंबर है। ये इंटीजर्स, ये इंटीजर, ये रेशनल नंबर। क्या 1/0 रेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि क्यों यहाँ पे डिनोमिनेटर ये p है, ये q, डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, नॉट डिफाइंड, NOT, नॉट डिफाइंड। तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। आपसे कोई पूछेगा क्या 3 रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3/1। तो ये आपका क्या है, 3 भी क्या है, रेशनल नंबर। अब आपसे कोई पूछेगा -7 क्या रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे 1 तो p तो है, q नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -7/1 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये p हो गया, ये q हो गया। क्या रेशनल नंबर है, यस, ये भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है आपका, q। याद रखना है, सिंबल आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूज होता है। सिंबल होगा, रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं हो सकता, तो 1/0 पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 नॉट डिफाइन होता है। इसलिए आप ध्यान रखना एक चीज़ का कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट आप और नोट कर दीजिए, ये नोट में लिख लीजिए कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने निकाल सकते हो आप, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने लाई करते हैं, इनफाइनाइट। ये दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर्स। अब सिंपल सी बात है, जो रेशनल नंबर होंगे नहीं होंगे उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। तो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको आप p/q में नहीं लिख सकते, q नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कुछ नंबर, जैसे मैंने लिखा है √2। √2 का वैल्यू आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ऐसे आप ले लीजिए रूट में √3, करेक्ट। क्या ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू भी क्या इसमें आ जाती है, इरेशनल नंबर, पाई। इसको भी क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ग्रीक लेटर है पाई। इस तरह के नंबर जिसको √17 प्राइम नंबर्स हैं, अंदर जितने भी होंगे ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये इरेशनल नंबर है। अब आपसे कोई गलती से पूछ लेगा क्या √4 इरेशनल है, तो आप कहोगे नो। क्या ये इरेशनल, नॉट इरेशनल नंबर। क्यों नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है √4, क्योंकि √4 को आप स्क्वायर रूट में लिखोगे तो 2 4 को लिखेंगे 2 × 2। देखो 4 के फैक्टर्स होते हैं आपके 2 से डिवाइड किया 2, तो ये फैक्टर बन जाए 2 × 2। तो ये फैक्टर पेयर आप बाहर ले सकते हैं, एक पेयर को रूट से बाहर, तो ये तो वैल्यू 2 आ गई, जो क्या होता है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है। √4 इज नॉट ए
इरेशनल नंबर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका √4 क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी पेयर बनेगा 2 का पेयर और बाहर आ जाएगी वैल्यू तो आपका रेशनल नंबर हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार आपने देखा कि अब सारे रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के आपके क्या बनते हैं, इज नोन एज रियल नंबर्स। क्या कहते हैं, रियल नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर दीजिए कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो दोनों का सेट होता है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर दोनों का सेट होते हैं। रेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इन दोनों को जब जैसे ही आप मिला लोगे तो इस पूरे रेशनल और इरेशनल को मिला के आपका क्या बनता है, रियल नंबर्स बनता है। क्या बनता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होता है, जिसमें रेशनल नंबर भी होते हैं प्लस मिला के इरेशनल नंबर्स। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक आपने अभी तक जो पढ़ा उसको मैं फिर से आपको लिए डिस्कस कर देता हूँ कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। फाइनली इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं तो आपसे कहूँगा कि इस वाले इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रियल नंबर्स को मैं फर्दर बता देता हूँ। रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या हो सकते हैं रियल नंबर, रेशनल नंबर भी हो सकता है आपका और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अभी तक जो पढ़ा उसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब रेशनल नंबर में कौन कौन से आ सकते हैं, सारे फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है रेशनल नंबर में, सारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे। रेशनल नंबर को 2 पार्ट्स में, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में लिया। फर्दर हम कहेंगे इंटीजर्स में भी 2 वैल्यू, सारे नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं और सारे होल नंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, होल नंबर। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, होल नंबर्स में भी अगर 0 को सेपरेट कर दे, होल नंबर में से 0 को सेपरेट करते तो बाकी जो नंबर बचेंगे 1 2 3 4 सारे, उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े जाते हैं तो इस चार्ट को आपको याद करना जरूर है। क्योंकि किस तरह से, क्योंकि 0 से अपर तक, ये ध्यान रखना, मैं वापस बता रहा हूँ, लो से अपर तक पॉसिबल है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। 0 से अब तक आपको याद रखना है। कैसे, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, नीचे वाला है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, तो आ जाएगा ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये इससे ऊपर है तो ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ट्रू। ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, ट्रू। और इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, ट्रू। और रेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, ट्रू। अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए तो आपको इसलिए 60 याद रखा है। जब भी कहेगा आपके सारे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो ट्रू। ट्रू फॉल्स में ये इस तरह का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताइए, आपको एक्सप्लेन किया था, पहले ही बताया था कि सारे नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर्स हो चाहे इंटीजर्स, क्या कहलाते हैं, आर रेशनल नंबर्स। क्यों कि जैसे आप वैल्यू ले लीजिए, नेचुरल नंबर में 3 लिया तो इसको आप लिख सकते हैं 3/1, तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। होल नंबर में ले लीजिए 0 का आप लिख सकते हैं 0/1, ये पी हो गया क्यू, तो ये क्या है, 0 भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। इंटीजर में कोई ले लिए -7, इसको डिवाइड बाय 1 लिख दो। ठीक है, तो ये भी क्या है, -7 भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। इसका मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट होते हैं, आपने पढ़ रखे होंगे, नेचुरल नंबर में आप फिर डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को आप जानते ही है 2 टाइप्स में, इवन नंबर और ओड नंबर्स। क्या होता है, इवन नंबर और ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, सिंपली या तो लिख लिए 2 डेफिनेशन इसके, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, किससे डिवाइड होते हैं, 2 से, तो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। जो इवन नंबर होंगे, इवन नंबर नहीं है उनको क्या कहेंगे, ऑड नंबर। या फिर आप सिंपली चेक कर दीजिए, लास्ट डिजिट देख लीजिए। लास्ट डिजिट क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए इवन नंबर के लिए, 0 2 4 6 8, उनको क्या कहेंगे, इवन नंबर। जो इवन नंबर नहीं है उनको कह देंगे ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, या तो बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 2। सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। या फिर आप सिंपली लास्ट डिजिट चेक कीजिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो आपका क्या कहलाएगा, इवन नंबर। जो नंबर इवन नंबर नहीं होते उनको क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बता देते हैं। जैसे आपने लिखा 7 3 4 2, क्या ये इवन नंबर है, ऑड, तो लास्ट डिजिट चेक कर दिए, लास्ट डिजिट क्या है, 2।
तो लास्ट डिजिट ये 2 आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर, क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन लिखिए 1739, क्या ये इवन नंबर है? लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 2 से डिवाइड है या नहीं है? नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट, क्या हो जाएगा ऑड नंबर। तो इवन नंबर नहीं है, वो क्या हो जाएगा ऑड नंबर। इस तरह से आप सिंपली लास्ट डिजिट को चेक कीजिए, लास्ट वाला डिजिट किसी भी नंबर में, जिसको वंस प्लेस भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, उसको चेक करके आप इजीली बता सकते हैं इस नंबर में लास्ट डिजिट 2 है, जो 2 से डिविजिबल है, या फिर 0 2 4 6 8 में से है 2 है, ये रहा 2, तो आपका क्या बन गया इवन नंबर। इस वाले वैल्यू का लास्ट डिजिट था 9, जो इनमें से कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑड नंबर। जो इवन नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। एक और पार्ट ले, नेक्स्ट पॉइंट। फर्दर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो भी आपका नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछ रखते हैं। आप इस तरह से नंबर 1 को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद होता है प्राइम नंबर, क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं प्राइम नंबर, और एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ऑन हैव 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। या तो नंबर खुद, इसका मतलब वो ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, और नंबर इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो, उसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं, नहीं होते, उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर है उनको प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स में एग्जांपल बता देता हूँ कौन कौन से जिसमें खुद से डिविजिबल है। आप देखेंगे 2, ये एग्जांपल बता देता हूँ। प्राइम नंबर कौन कौन से है? 2 और 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह से आप सब जानते हैं। ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? 2 3 9 5 7 11 13 17 9 आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होते, नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है उनको आप बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। आप इसी नंबर्स में देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यूज रह गई, वो आपके क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, नेक्स्ट क्या बचा? 4, तो कंपोजिट नंबर है। 5 आ चुका है, नेक्स्ट 6, 7 आ चुका है, 8 बच जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ चुका है, 12 आ जाएगा। इस तरह से आप कंपोजिट नंबर निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर 4, ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, विच वन इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 4, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन तो फिर कहेंगे ये 1 क्या है सर? 1 नाइदर प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए कंपोजिट नंबर, ये ध्यान रखना है। नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। जो 1 होता है वो आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर भी नहीं होता है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। एग्जाम में पूछे कि कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, जो आप डिस्कस कर चुके हैं, वैसे बता ही देता हूँ। इसी पॉइंट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने नेचुरल जो प्राइम नंबर्स लिखे हैं, ये 2 है, ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट, नोट कर दीजिए इसको, इवन प्राइम नंबर। एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। मैं को 1 से 100 तक सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो हमेशा आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2, क्योंकि एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है। क्या होता है? इवन होता है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट एग्जाम में पूछता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आपका हो जाएगा 3, क्योंकि ये तो इवन है, बचा कौन सा? 3। 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा? ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 3।
3 इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। कौन सा है? ओड प्राइम। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नाइदर प्राइम नोर कम प्राइम, तो 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा। एक टर्म्स है फैक्टर्स और एक होती है मल्टीपल, जो पहले क्लासेज में 6-7 में आप पढ़ चुके, फिर भी बता देता हूँ, कभी कभी यूज होती है। पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स की डेफिनेशन हो जाएगी ऑल नंबर्स विच डिवाइड्स गिवन नंबर। गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं सारे नंबर्स, क्या कहलाते हैं? इसके फैक्टर्स है। जैसे कि एग्जांपल जैसे आपसे बोला 16 के फैक्टर बताओ, तो 16 के फैक्टर ऑफ 16 क्या क्या हो जाएंगे? फैक्टर ऑफ 16 बताना है। तो 16 में किस नंबर का भाग जाता है? आप देखेंगे 1 से डिवाइड है, और किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। और 16 में किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से नहीं जाएगा, 4 से यस, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 7 से नो, 8 से यस। फिर और देखोगे किससे डिवाइड होगा? 16 से। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ 16 क्या हो जाएंगे आपके? 1, 2, 4, 8, 16। दिस इज योर आंसर, ठीक है। कैसे निकालने का आपको तरीका बता दो। 16 को आप ब्रेक दिए 1 × 16। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 16, यस, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। 3 से डिवाइड हो रहा है? नो। 4 से? यस, 4। तो आप ये नंबर देखेंगे 4 यहाँ आ चुका है, यहाँ रिपीट हो रहा है इसमें। तो आपके नंबर्स कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे 16 के? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 आ चुका है, ऐसे इस तरह से लेना है, इस तरह से ऊपर जाना है। 4 आ चुका है, नेक्स्ट 8 और 16। तो ये 1, 2, 4, 8, 16, 1, 2, 4, 8, 16। तो ये ट्रिक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 16 मतलब टेबल्स, जैसे अभी तक आपने पढ़ा है टेबल्स ही होती है नॉर्मली। यही मान ली आपसे बोला जाता है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से? तो 3 की टेबल बोल देती है। मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करते जाएगी तो आपके जो मल्टीपल्स बन जाएंगे। 3 की टेबल, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को 2 से, 3 को 1 से कर लो, 3 को 2 से कर दो, 3 को 3 से कर दो। बहुत से स्टूडेंट इसे टेबल्स के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को आप 1, 2, 3, 4 इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको जो प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है मल्टीपल्स कहते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 आपके हो जाएंगे 3, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये क्या आ गया आपके? इस तरह से इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, जबकि फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 आपके आंसर आ गए 3 × 1 क्या हो गया? 3, 3 × 2 6। क्या आप किसी भी नंबर जैसे 3 के मल्टीपल चाहिए तो 3 को 1 से कर दीजिए, तो एक मल्टीपल। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा फैक्टर। 3 को 3 से, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीसरा फैक्टर। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चौथा फैक्टर। इस तरह से आपके फैक्टर्स निकलते जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाती है कंपटीशन में, वो भी बता देता हूँ कभी कभी, ताकि आपके ये भी डाउट क्लियर हो जाए। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स? तो सिंपली इसकी डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर्स इज 2। डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर लिख लीजिए यहाँ, डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। उन्हें क्या कहते हैं? ट्विन को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप देख लीजिए 3 और 5। 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी है, दोनों का डिफरेंस 5 - 3 2। और लिख लीजिए 5 7। देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। 7 में से 5 गया 2। एक और लिख लीजिए 11 13। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरह के नंबर्स को क्या बोले जाता है? जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाए? 2। कितना आ जाए? 2। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा? 2। 5 7 11 13 डिफरेंस 2। तो इनको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है, कोप्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? कोप्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनका HCF क्या होता है? दो नंबर्स के बीच का HCF, दो नंबर्स की, फॉर टू नंबर लिख लेना, टू नंबर्स के बीच का, दो नंबर्स का अगर HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो उन्हें क्या बोलते हैं आप? कोप्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स देख लीजिए आप किस तरह के। जैसे मैंने आपसे लिखा 2 और 3, इनका HCF लोगे तो आपको हमेशा कितना मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलो जल्दी, 1 आएगा।
इसका मतलब कोई भी कंटिन्यूस दो नंबर ले लीजिए, जैसे 1 2, तो इनका भी HCF 1। लगातार दो नंबर ले लीजिए 5 6 और लिख लीजिए 7 8 11 13। तो इस प्रकार दो नंबर कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे, ये ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं लेने। 11 12, तो इनका भी HCF क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। HCF क्या आएगा, 1। तो ये सारे क्या है, कोप्राइम नंबर है। क्या है, कोप्राइम नंबर्स के पेयर है। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दो कंटिन्यूस नंबर, टू कंटिन्यूस नेचुरल नंबर, टू कंटिन्यूस नेचुरल नंबर। दो लगातार कोई भी कंटिन्यूस नेचुरल नंबर ले लीजिए लगातार, जैसे 2 3, 2 के बाद 3 आता है तो 2 3, 1 के बाद क्या आता है 2 तो 1 2, 5 के बाद क्या आता है 6 तो 5 6, 7 के बाद क्या आता है 8 तो 7 8, 11 के बाद क्या आता है 12 तो 11 12। तो ये जो पेयर होगा ये हमेशा क्या होगा, कोप्राइम नंबर। दूसरी चीज़, कोप्राइम नंबर्स के लिए आप सारे प्राइम नंबर्स ले लीजिए। प्राइम नंबर्स हमेशा टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम नंबर, लिख लेना। टू प्राइम नंबर्स, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ये आ गया टू कंटिन्यूस नंबर, सेकंड टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम नंबर, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, दो प्राइम नंबर लगातार लेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, कोप्राइम नंबर रहेंगे। टू प्राइम नंबर्स हमेशा क्या रहते हैं, टू प्राइम नंबर आर ऑलवेज कोप्राइम नंबर। टू प्राइम नंबर कोई भी ले लीजिए आप कहेंगे सर प्राइम नंबर मैंने लिखा 3 और एक लीजिए 7, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये हमेशा HCF क्या देगा, 1 ही आएगा। इसका HCF हमेशा 1 आएगा। और लिख लीजिए 11 ले लीजिए 70, इन दोनों का HCF की कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो ये भी क्या है, कोप्राइम नंबर, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो हमेशा ये इनको टू प्राइम नंबर कोई भी ले लीजिए, दो प्राइम नंबर कोई भी। ठीक है, आप ले लीजिए 7 और 13, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, इसके पेयर भी क्या HCF क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो इसीलिए ये भी क्या कहलेंगे, आपके कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पर्पज। नेक्स्ट अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। आपने अभी तक पढ़ा था रियल नंबर में 2 टाइप्स होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, स्टार्ट में रेशनल नंबर, इरेशनल। अब इन दोनों में कैसे पता चलेगा कोई नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एक पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या पढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। इसे आप अच्छे से नोट कर दिए, ये आगे यूज करेंगे, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसमें अलग अलग केसेस बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले केस फर्स्ट की डिवाइड बात करते हैं। जब रिमाइंडर आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बिकम्स 0। रिमाइंडर क्या हो जाता है, बिकम्स 0 हो जाता है, रिमाइंडर 0। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। 3/8 दे रखा है, 3 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। मैं सेपरेटली साइड में डिवाइड करता हूँ, 3 में डिवाइड करें 8 से, तो नहीं जा रहा तो आप लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30। अब कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम, 8 2 जा 16, सॉरी 8 3 जा 24। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6। क्या पॉइंट लगा चुका है, एक 0 लगाइए। कितनी बार डिवाइड होगा, 7 टाइम 56। फिर आप देखेंगे 4, फिर 0 लगा दीजिए, पॉइंट लग चुका है। कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम, 8 5 जा 40। इस तरह से आपने देखा कि जो रिमाइंडर आ रहा था, ये लास्ट में जो रिमाइंडर वैल्यू आ रही है, ये रिमाइंडर कितना है आपका, ये है रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपका डिवाइड करने का वैल्यू आ रही है 0.375। तो वैल्यू में लगता है 3/8 की वैल्यू आ जाएगी 0.375। इस केस में भी आपका रिमाइंडर क्या है, 0। 1/2 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, आ जाएगा 0.5। तो आप जो वैल्यू दे रखे हैं डेसिमल में, जो नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेट्स हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। 3/8 को 0.375, इसके बाद आगे चलेगा नहीं, एक्सपेंशन आप डिवाइड नहीं कर सकते। इस प्रकार से 1/2 को भी डिवाइड करके 0.5 वैल्यू आ चुकी है, तो अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब, कहने का मतलब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है, तो आप नोट डाउन कीजिए। द डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, क्या हो रहा है, टर्मिनेट्स मतलब एंड हो जाता है, या फिर और एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ नंबर के स्टेप के बाद ये एंड हो जाता है। सच टाइप ऑफ एक्सपेंशंस ऑफ नंबर्स इज नोन एज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वही होते हैं जिनका रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0।
ठीक है, कुछ पॉइंट हुआ डेसिमल के बाद, तो उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 1 हो चुका है, आई होप यू अंडरस्टैंड टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ये नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 आपका क्या कहता है? केस 2 में क्या कहता है, जब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर की वैल्यू लास्ट में क्या आएगी? 0 नहीं आएगी, बट 0 नहीं है, परंतु बट वी गेट ए रिपीटेशंस ऑफ सेक्शंस ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन। हम किसी सेक्शन में कुछ पार्ट का रिपीटेशन देखेंगे बार बार। जैसे क्वेश्चन से अगर 1/3 को डिवाइड करके देखते हैं, 1/3, तो देखिए आप इस तरह से मैं बता देता हूँ। 3 में जैसे ही 1 में डिवाइड करना है, 3 से 1 में डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं जा रहा, पॉइंट लगा ला, तो जैसे आप 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लग चुका है, 1 0 और 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 3 जा 9। इस तरह से ये कंटिन्यू चल रहा है, बार बार आता रहेगा, ये रिपीटेशन हो रहा है। आप देखिए तो डिनोमिनेटर में यहाँ टर्म्स 3.3 के बाद कितना आया, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद ये क्या है, वैल्यू रिपीट होती जा रही है, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसकी वैल्यू जो होगी एक्सपेंस 0.3 की, इसकी वैल्यू आएगी 0.333, ये लगातार रिपीट होता ही रहेगा कंटिन्यूस, ठीक है। इसी प्रकार से आप 8/9 को डिवाइड करके देख लीजिए। 8 में 9 से 9 8 जा 70, पॉइंट लगाएंगे, पहले 0 हो जाएगा, 9 8 जा 72, 8, फिर आप 9 8 जा 0 लग जाएगा इधर, 9 8 जा 72, फिर आपका 8 बचेगा। तो यहाँ रिपीट क्या होता जाएगा, बार बार 8 रिपीट होगा, क्योंकि रिमाइंडर 8 है, बार बार आता रहेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट, ये 8 बार बार रिपीट होता जाएगा आगे लगातार, ठीक है, रिपीट हो रहा है आगे, डॉट 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 लगा रहा हूँ, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 0.88, आगे चलता रहेगा, रिपीटेशंस हो रहा है। इस तरह से ऐसे नंबर्स जिनका रिपीट, अब एग्जाम वी गेट नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट्स होता है, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग्स कहते हैं। जो बार बार रिपीट होते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग्स। डेसिमल एक्सपेंशन, उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जो रिपीट्स होते हैं बार बार, देखो पॉइंट के बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग्स कहते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग्स कहेंगे, ठीक है, और रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है, उसको आप अच्छे से नोट कर दीजिए, बार बार कंपैरिजन आपके हेल्पफुल होगा, नोट कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, बार यूज करते हैं, द बार, ठीक है, ऊपर द बार अबव द डिजिट्स इंडिकेट्स द सेक्शन ऑफ डिजिट्स दैट रिपीट्स। जो सेक्शन ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बार यूज करते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, बार। क्या यूज करते हैं, बार। कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। 1/3 भी जो वैल्यू देखो 0.33 ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 0.3, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रही है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर ये बार लगा दिया, इस तरह के साइन को क्या बोलते हैं, बार। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, किसी भी नंबर जो डिजिट रिपीटेड हो रहा है उसको बार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट, इसी को भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे 8/9 की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि आप जो वैल्यू देख रहे हैं ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, 8, फिर 8 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, तो रिपीट क्या हो रहा है, 8। क्या रिपीट हो रहा है, 8। तो इसको बार में कैसे लिख सकते हैं, 0.8 की पावर को 8 पे क्या लगा देंगे, बार। इस तरह से ये जो बार का सिंबल्स होता है, जो ये बार का सिंबल्स है किसी नंबर की, ये शो करता है इसका रिपीटेशन। अगर आपके एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस में दे रखा है, जैसे मैंने लिखा है 1.21, इस पे बार, तो इसका मतलब होता है 21 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 21। क्या रिपीट हो रहा है, 21। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1.21 21 21, देखो बार बार रिपीट हो रहा है 21 21, इसके डॉट लगाएंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी सिंबल आपके ऊपर बार लगा होगा ये बार, तो वो नंबर जितना भी डिजिट्स के अंदर है वो सारे डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, रिपीट। ये आपको ध्यान रखना है इस बार का। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट इसी में पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन में जब भी आपके डेसिमल एक्सपेंशन इन ए रेशनल नंबर, जब भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, दे कैन बी आइदर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग से मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसे होने चाहिए, रिपीटिंग।
या फिर रीकरिंग। रिपीटिंग का एक वर्ड और है, आप इसको नोट कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको रीअकरिंग भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रिपीटिंग को ही बोलते हैं। रिपीटिंग को क्या बोल सकते हैं? रीअकरिंग। ठीक है, एक ही चीज़ है, रिपीटिंग डेसिमल्स। इसका मतलब रैशनल नंबर उन्हें कहते हैं जो टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो? रिपीटिंग, तो भी आपका क्या बनेगा? रैशनल नंबर्स। क्या बनेगा? रैशनल नंबर। इसको मैं चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये आपको पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं रहनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन में इस तरह से आपने क्या पढ़ा कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग कब होता है? जब रिमाइंडर जीरो होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका ध्यान रखना। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हो तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस आ सकते हैं, या तो रिपीटिंग होना शुरू हो जाए, क्या बोलेगा? रिपीटिंग हो जाए। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हैं। अगर रिपीटिंग नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। तो नॉन मतलब डेसिमल रिमाइंडर स्टॉप रिपीटिंग, रिमाइंडर रिपीट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं। इस टाइप के नंबर जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन, इस टाइप के ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग्स हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो? रिपीटिंग्स हो। क्या हो? रिपीटिंग। तो इस तरह के नंबर्स आपके क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रैशनल नंबर्स बनाते हैं तो या तो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो क्या होने चाहिए? रिपीटिंग होनी चाहिए। एक और बता रखा है कि जो भी टर्मिनेटिंग नंबर कोई भी आप देखेंगे उनका डिनोमिनेटर इज 2, 5 और बोथ दोनों हो सकता है। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन को चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू देता हूँ, जैसे आपने लिखा 1/8, तो आप डिनोमिनेटर क्या है? क्यों? 8 के फैक्टर निकाल दीजिए। 8 के फैक्टर आपको निकालना है, 2 4 जाए 8, 2 2 जाए 8, 2 बन जाए। तो इसका मतलब ये 2 के फैक्टर आ रहे सिर्फ, तो भी ये नंबर पॉइंट में कुछ न पॉइंट्स पे जाके टर्मिनेट्स हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, 100% श्योर। 1/5 है, 5 है तो भी जीरो आएगा। 1/25, 5 इंटू 5 तो भी आ जाएगा। 1/10 तो भी आ जाएगा क्योंकि 2 इंटू 5 है। 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, इसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 5, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, तो भी ये टर्मिनेट करेगा। इसके अलावा कोई फैक्टर्स होगा पावर्स में तो वो टर्मिनेट नहीं होता। दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, उनको बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। तो अभी इरेशनल नंबर की बात भी कर लेते हैं। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते थे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पी अपॉन इन द पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस करना है। पी अपॉन क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल 0.3 को तो आप इजीली लिख सकते हैं 3/10, तो ये आ गया पी अपॉन क्यू फॉर्म। दिस इज योर आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिपीटिंग पार्ट हो रहा है, बार बार रिपीटिंग, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे किए जाते हैं तो आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसको x मान लीजिए। लेट आपको मानना पड़ेगा x बराबर ये पूरी वैल्यू कंप्लीट 0.47, इस पे रिपीटिंग है। आप जानते हैं जितने पार्ट पे रिपीटिंग है, जितने पार्ट पे रिपीटिंग है ये पार्ट पे, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट, ठीक है, आप इसे 0.47 47 47 47, ठीक है, ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, डॉट डॉट करके आपने शो कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं? कितने पार्ट रिपीट हो रहे हैं? 2 पार्ट रिपीट हो रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। 2 पार्ट्स रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद, देख लीजिए 1 और 2, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने पार्ट रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 पार्ट हो रहे, 1 पार्ट रिपीट हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पार्ट रिपीट होता है 100 से, 3 पार्ट रिपीट होता है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई दोनों साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 100 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इंटू एक्स क्या आ जाएगा? 100x। और जैसे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ, ये आ जाएगा 47, पॉइंट यहाँ चला जाएगा 47 47, इस तरह से रिपीटेशंस आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब क्या सिंपली क्या आप काम कीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे करते हैं? सिंपली आप जानते हैं
नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 में से आपको फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन का तो पता ही होगा, मैं फिर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो 100 में से x को घटाया कितना बचा, 99। x 100 में से कितने घट गए, 1, सब्ट्रैक्ट करते 99। अभी आप 47 है, पॉइंट से पहले की वैल्यू देखो, पॉइंट से पहले क्या है 47, इसमें पॉइंट से पहले क्या है 0, तो 47 में से 0 घटा दो, क्या बचेगा 47, और पॉइंट के बाद सेम रिपीटिंग है तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपको 47 में से 0 गया तो 47, तो सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी 47/90, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा -x = 47/99। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक कैसे है देखिए, आप पार्ट रिपीट होने वाला यहाँ से रिपीटिंग हो रहा है जबकि आगे से रिपीट नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में। आप पहले तो आप लेट x तो वही मानेंगे, x = 1.235 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक बार, 1.235 रिपीट हो रहा है, 35 35 35, ये रिपीट होता चला जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मत दीजिए क्योंकि रिपीटिंग पार्ट में इसमें डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे, तो रिपीटिंग पार्ट से पहले डेसिमल लाना है। तो आप क्या करिए, एक पॉइंट आगे शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे x से तो 10x हुआ, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहाँ से एक डिजिट छोड़ के नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.35353535। ठीक है, इस तरह से होगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2। ठीक है, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2। तो अब इसको फर्दर आपको किससे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई, ये इसमें ट्रिक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 100। जैसे आप इक्वेशन नंबर 2 आपको दे रखी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। 100 से जैसे इसको मल्टीप्लाई किया 10 × 100, 100 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, तो 10 × 100, 100 से मल्टीप्लाई किया 10 को तो क्या आएगा 1000 x, 10 को मल्टीप्लाई किया है इससे 100 से, तो आपका आ जाएगा 1000 x का x, और ये 2 डिजिट्स यहाँ से, ये 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 1 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 35 पॉइंट यहाँ चला गया, फिर 35 35 35 रिपीट होता चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब वही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ी वाली में इस छोटी को, सब्ट्रैक्ट इस 2 को फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 को। तो देखिए इस साइड आपका 1000 है, 1000 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको जाते हैं 1000 में 10 को घटा देंगे तो आपका बन जाएगा 990, और x का x है। इस वैल्यू में पॉइंट से पहले वैल्यू आपकी कितनी है, ये वाली वैल्यू, इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना है 12 को, तो इस वाली वैल्यू में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 1235 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए 12 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 3221 1223। ये आपका 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को इसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका आ जाएगा 200। ये अब सिंपली x = बाकी वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाती है पॉइंट के बाद रिपीटेशन से, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली रिपीटेशन कितनी बार भी होगा तो सेम रहेगी। ये आगे और रिपीट, आप होगे सर इसमें इतनी बार है इसमें कम है तो इसको और रिपीट कर सकते, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इसमें से घटाते x = ये सिंपल 23 अपॉन डिवाइड कर दिए 990, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको सिंपली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा, ये
अब इस इरेशनल नंबर्स में अभी तक आपने जो पढ़ा, इरेशनल नंबर कैसे पता करेंगे, आप बताया था आपको। इरेशनल नंबर पता करने रूट में जो एम होगा वो क्या होना चाहिए, पहले तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप √2 लिखा तो भी सही है। इरेशनल नंबर √3 इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। ये सारे क्या इरेशनल नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे आपने लिखा था पहले √4, तो इरेशनल नंबर नहीं था क्योंकि 2 का स्क्वायर था। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रखा है वैसे तो, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। और लास्ट ये नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड दोनों होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी और साथ में नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप के नंबर्स को आप कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फाइनल इस चैप्टर को एंड करेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चलो इस लेक्चर को एंड करने से पहले 1-2 क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। फाइंड क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम से, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। आपको √2 और √3 के बीच में क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना। तो सिंपली आप पहले तो आप √2 की वैल्यू आप सिंपली पॉइंट में निकाल लीजिए, आ जाएगी 1.414 और समथिंग रिपीट करता जाएगा। √3 की वैल्यू ये आ जाती है 1.732, ये आ जाती है। इस तरह से आप √2 और √3 की वैल्यू होती है, रिमेंबर कर लेना, काम भी आती है बार बार। अब इस तरह की वैल्यू में आप जब भी आपको इरेशनल नंबर लगाना है तो मैं सिंपल सी ट्रिक कहता हूँ। आप देखिए ये 1 सेम है, 0.41 के बाद कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप। ये 1.41 के बाद 42 ले लीजिए, इससे तो कम आएगा, या 73 है या 741 है। 42 ले लो, 43 ले लो, 44 कुछ भी ले लो, आपने ले लिया 42। अब एक बार 0 लगा दो, फिर वापस इसको रिपीट कर दो 42 को, ठीक है, इसी को। फिर 2 0 लगाओ, फिर वापस 42 को रिपीट करते जाओ। फिर 2 के बाद कितने 0, 3 0, फिर 42 को लगा के 4 0। इस तरह से आप सिंपली इरेशनल नंबर निकाल सकते हो। सर कहोगे एक और इरेशनल नंबर बताओ, ठीक है। 42, अब इसके बीच में कौन सा नंबर है, आप कोई भी ले लो। आप कहोगे सर 50, तो लिख लो 1.51 ले लो, ठीक है। 51 ले लिया, 1 0, फिर वापस 51 को रिपीट करना है। 51 कितने 0 लगाऊंगे, 1 आ चुका है, 2 0, फिर इस 51 को रिपीट करना है। कितने 0 लगा दो, 3 0, फिर 51 को लिखो, कितने 0 लगा दो, 4 0। इस टाइप के नंबर हमेशा क्या रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिपीटिंग है, हमेशा ही होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ही होगा हमेशा, ये फिक्स है। तो ये इस टाइप के नंबर क्या हो जाएंगे आपके, इरेशनल नंबर। ये क्या बन जाएंगे, दोनों एग्जाम्पल किसके होंगे, इरेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये आपका एग्जाम्पल्स हो गए, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। ये आपका एक तो आंसर हो जाएगा और डॉट करते रहना, और दूसरा ये हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते। आप लोगों के सब 0.373 और 0.41, इसके बीच में तो बहुत सारे 1.59 भी लो तो कुछ भी लिख लो आप, इच्छा है जितने निकाल सकते। 1.59, 1 0, 59, 2 0, 59, 3 0, 1 2 3, इस तरह से आप बहुत सारे इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इरेशनल नंबर्स। सिंपली आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड इरेशनल नंबर्स, क्या निकालना है, इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7, इनके बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकाल। तो 1/7 को जैसे आपने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ रही है, इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। पर इस वैल्यू में आप एक चीज़ देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, एक चीज़ आपको देखने लायक है, ठीक है। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। इस वैल्यू में आप देखेंगे कुछ रिपीट हो रहा है, आप देखिए इसमें कुछ ना कुछ रिपीटेशन जरूर हो रहा होगा। सॉरी, ज़रूरत नहीं है रिपीटेशन, कुछ वैल्यू रिपीटेशन हो रही है नहीं हो रही है, आपको देख लीजिए रिपीटेशन कुछ हो रहा है या नहीं हो। आप देखेंगे 1 के बाद 4 2 8 5 7 1 यहाँ तक, उसके बाद ये वैल्यू वापस रिपीट हो रही है, देख लो 4 2 8 5 7 1। तो इसका मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0.14285 इस पर क्या लगाएंगे, बार। ये वैल्यू भी रिपीट हो रही है, आप देख लीजिए, देखो 2 8 5 7 1 4 यहाँ तक सेम है, फिर ये रिपीट हो रही है, देखो वापस रिपीट हो रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू में
2 8 5 7 1 4। आप कहेंगे सर इनके बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो सिंपल तरीका है। देखो आप पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, 14 है, यहाँ पॉइंट के बाद 28 है। तो इस तरह की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू ले लो। आप कहोगे सर पॉइंट 14 और 28 के बीच में कौन सी वैल्यू है? कोई भी ले लो। आप कहोगे 15। अब लगाते जाओ 1 0, फिर 15 2 0, 15 3 0, ठीक है, 15 4 0। तो ये भी सारे किसको शो करेंगे? इरेशनल नंबर्स को। इस तरह से और वैल्यू निकालनी हो तो जितने भी आप इरेशनल नंबर इजीली निकाल सकते हो, तो आपके इरेशनल नंबर इजीली आप निकाल सकते हो। इस तरह से आप किसी भी नंबर के बीच में देख के वैल्यू निकालना सीख सकते हो, इरेशनल नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस तरह आपके एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू and subscribe my channel. Have a nice day. Thank you. Keep on smiling. Thank you. Have a nice day. God bless you. God bless you. ठीक है, see you in the next video. Bye bye. Take care.